guys, this is CA Shubhi Mundra this side. I hope you all are doing great. So before we start with today's topic, let me remind you to join the Telegram channel if you haven't, because you'll get all the updates regarding the classes, regarding latest notes and many more in the Telegram channel. Plus, you can also go for plus subscription. Right now Iconic is not available. You can go for plus subscription. Why to take plus subscription? Because if you take plus subscription for CSET or CS Executive or any of the courses in Unacademy, you can get all the access to unlimited views of the videos of various educators. You can get weekly test, one-on-one interactions with the educators. You will get lots of special classes, unlimited access to the course, live classes, plus notes, study material, experts guidelines, test analysis and free test series. Yes, so this is something which is limited, but there is a lot and a lot and lot more. If you go to the plus subscription, we keep on adding new things which will serve the best to the students for getting good marks, for getting the exemptions. Yes, and also you can take the course, unlike others, you can take for 3 months, 6 months, 12 months, 24 months, and the fees is very less. So obviously you can take subscription for 3 months, 6 months, 12 months, 24 months according to your need. But I would really suggest for students who are doing CSET, they can go for CSET subscription for 3 months as of, because May में exam है, or they can also go for CSET plus CS Executive. दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल. वाई? बिकॉज एज सुन एज आपकी मे में एग्जाम होगी, आप लोग रिवाइज करना शुरू कर सकते हो, इंडेक्स के बारे में जान सकते हो, इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो अंटिल योर रिजल्ट. सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल टू किक स्टार्ट सी एस एग्जीक्यूटिव. सो यू कैन टेक सी सेट प्लस सी एस एग्जीक्यूटिव कॉम्बो एज वेल. And yes, definitely we have a good offer for you. So whenever you use my code, that is CS Shubhi, that is SHUBHI, and you have to insert a C in front of that. So when you use this code, you will get maximum discount available. Whatever the discount is available on the day, it can be 10%, 20%, it can be any offer which is available for that particular day, you will get the discount. Okay, so let's study smart. Join the app, join the subscription, and get access to unlimited views. There's no pen drive thing. It's just like any other Instagram or Facebook app you use. वैसे ही आपको ये app use करना होता है, and you can easily access to all your lectures in just your mobile with an OTP. That's it. Okay. So let us start with the paper discussion. As promised to you, I have brought again question number 2. That is a 4 questions. So here we are going to discuss this 4 questions. We have already discussed question number 1, and I hope you have all just attended that video and it was helpful to you, because in RCD, as I've already told you guys, all the game is, जितना भी इसका game है, जितना भी इसका strategy, it's about understanding the questions. Because answers हमको पता होते हैं, but 90% students इस paper में कहीं fail करते हैं. तो that is how to understand the questions, how to interpret the questions. Because इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा case laws पूछता है या बहुत ज़्यादा indirect questions पूछता है. They ask you indirect in a very direct way. Okay, so let's start with the paper discussion. Okay, so we are going to discuss 4 questions for 16 marks. We are going to start with question number 1. During the course of secretarial audit, it was found that in one of the case of transmission of shares, the company took 4 months from the date of its lodgement. Discuss the provisions relating to transmission of shares under Companies Act 2013. If you remember guys, हमने ये chapter number 2 में पढ़ा था corporate disputes में, कि अगर कोई company शेयर ट्रांसमिशन पर्टिकुलर डेट में नहीं करती है, सो देयर कैन ऑल्सो बी अ पेनल प्रोविजन, देयर कैन ऑल्सो बी अ डिफॉल्ट. इफ यू रिमेंबर, मैं आपको मेरे नोट से भी दिखा देती हूँ और मैंने यहाँ पे भी आंसर दिया हुआ है. सो ऑब्वियसली जब आप सेकेंड लाइन पढ़ते हो दैट द कंपनी टुक 4 months, तभी आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम द पेनल प्रोविजन. ओके, सेक्शन नंबर 56 सब सेक्शन 4 में हमने पढ़ा था कि कंपनी को within the period of 1 month from intimation of transmission क्या करना पड़ेगा, उनको शेयर ट्रांसफर करने पड़ेंगे. ओके, ये वाला जो प्रोविजन है ये अमेंड हुआ है. पहले इसके जो डिफॉल्टिंग
वैल्यू थी वो अलग थी, अब इसकी जो डिफॉल्टिंग वैल्यू है वो अलग है. लेट मी शो यू फ्रॉम माई नोट्स. इफ यू कैन सी हियर, हमने यहाँ देखा था टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट. इफ माई स्टूडेंट्स आर सीइंग दे वुड रिमेंबर. तो इसमें हमको कौन सा वाला एप्लीकेबल हो रहा है प्रोविजन? थर्ड वाला पॉइंट आप देखो, विद इन द पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ट्रांसफर शेयर ट्रांसफर डीड और द केस में बी इंटीमेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. मतलब टाइम लिमिट क्या है? विद इन 1 month फ्रॉम लॉजमेंट. तो कंपनी ने कितना टाइम लगाया है यहाँ पे? इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, सो देयर इज अ कंपनी जिसने इंटीमेशन के बाद इट टुक 4 months, बट 56(4) says that it shall take 1 month. So definitely यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने यहाँ पे डिले किया है, कंपनी ने यहाँ पे नेग्लिजेंस किया है फॉर दी सेक्शन 56 सबसेक्शन 4. सो व्हाट इज द कॉजेस? क्या होगा? लेकिन सबसे पहले आपको आंसर में लिखना पड़ेगा व्हाट इज द प्रोविजन, फिर आपको लिखना पड़ेगा पेनल प्रोविजन. अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो क्वेश्चन 2 पार्ट्स में पूछा है. पार्ट 1 दिस इज कि व्हाट इज द कॉजेस, लाइक व्हाट इज द टाइम लिमिट, एंड सेकेंड पार्ट में आपको पूछा है व्हाट इज द पेनल प्रोविजन. सो लेट्स सी, यहाँ पे लिखा है सेक्शन 56 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन C of the Companies Act 2013 provides that every company unless prohibited by the provision of law or any order of court, tribunal or other authority deliver the certificate of all securities transmitted within the period of 1 month from the date of intimation of transmission. So definitely यहाँ पे उनको 1 month में देना था. Now what is the penal provisions? पहले जो penal provisions थी it was 25,000. ओके, एंड देन इट वॉज 5 लाख रुपीज एज वेल. लेकिन अभी जो हो गई है दैट इज सिंपल, और उसको रिड्यूस भी कर दिया है, दैट इज 50,000 फॉर ऑल. Okay, now see, the Companies Act 2020 has made changes in penal provisions contained in section 56(6) in case of default, and the said amendment came into effect from 21st December 2020. The amended section 56(6) of the Companies Act provides that where any default is made in compliance with the provision of subsection 1 to 5 of section 56, the company and every officer of company who is in default shall be punishable with 50,000 rupees. ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. आपको फिर से ये देख के लगेगा कि यार ये डिफिकल्ट है, बट कुछ भी नहीं है. आपको इसमें सिर्फ 2 पॉइंट क्लियर करने हैं. फर्स्ट सिचुएशन दी हुई थी क्वेश्चन में कि कंपनी ने 4 महीने लॉजमेंट के बाद लगाए ट्रांसमिशन के लिए, विच इज रॉन्ग. कंपनी को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 सबसेक्शन 4, और यहाँ पे अगर आपको सेक्शन नहीं लर्न है, इट्स ओके. ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग सेक्शंस. अभी हमारे पास टाइम है, हम कर सकते हैं, दैट इज वेल एंड गुड. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेक्शंस लर्न करने के चक्कर में प्रोविजंस या एक्चुअल आंसर्स नहीं लिख पाते या प्रेशर में आ जाते हैं. डोंट डू दैट थिंग. ओके, डेफिनेटली सेक्शन लिखना इज इंपॉर्टेंट. सेक्शन लिखना इज, आई वुड सजेस्ट कि आप सेक्शंस लिखो, बट अगर सेक्शन ज्यादा लर्न करने की वजह से आपकी पढ़ाई हैम्पर हो रही है तो डोंट डू दैट. ओके, इंपॉर्टेंट सेक्शंस लर्न कर लो. सो यहाँ पे कंपनी ने 4 months लगाया. कंपनी शुड हैव टेकन 1 month अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन. एंड व्हाट इज द पैनल प्रोविजन? लेटेस्ट पैनल प्रोविजन है यहाँ पे, इट इज 50,000. Now the question which students ask me is कि मैम अगर यहाँ पे 50,000 हमने लिखा है तो हमने आंसर में पुराने जो प्रोविजन थे वो क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखोगे, नाउ दिस अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस. इसमें आपके अगर आप सिर्फ इतना लिखोगे ना, आपको सिर्फ 2 या 2.5 मार्क्स मिलेंगे, बट क्वेश्चन 4 मार्क्स का है. अनदर थिंग इज, आपको क्या पूछा है? इज देयर एनी चेंज इन पेनल प्रोविजन? इसने ये नहीं पूछा कि व्हाट इज द पेनल प्रोविजन एट द करंट सिनेरियो, राइट? अब इसने पूछा व्हाट इज द चेंज. तो चेंज में हमको समझ में आ रहा है कि ये पास्ट भी पूछ रहा है और प्रेजेंट भी पूछ रहा है. एज आई हैव टोल्ड यू गाइज, इट इज ऑल अबाउट इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चन. तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन इंटरप्रेट करना है. इट इज ऑल अबाउट कि पास्ट का भी पूछ रहा है और प्रेजेंट का भी पूछ रहा है. ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग हियर कि हमको प्रेजेंट का तो लिखना है सबसे पहले, बट हमको ये भी लिखना है कि पहले क्या प्रोविजन थी. पहले कंपनी के ऊपर फाइन था नॉट लेस देन 25,000 रुपीज, बट विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज. और एवरी ऑफिसर जो डिफॉल्ट में था उसका था नॉट लेस देन 10,000 रुपीज, बट विच मे एक्सटेंड टू 1 लाख. बट अभी क्या कर दिया? यूनानिमस कर दिया है, 50,000 कर दिया फॉर कंपनी और एनी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट. ये मैं आपको नोट से फिर से दिखा देती हूँ. इफ यू रिमेंबर, हमने ये प्रोविजन पढ़ी थी पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट नोट्स में.
ठीक है। बट अभी ये जो है ये कितना हो गया है, 50,000 हो गया है फॉर बोथ द केसेस, दैट इज इन द केस ऑफ कंपनी एज वेल एंड इन द केस ऑफ एनी ऑफिसर एज वेल। ओके, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो ये चैप्टर, वैसे तो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर से ही है, अभी 2 क्वेश्चन तो आपके ये हुए ही होंगे अभी तक, बट इनकेस नहीं हुआ है इट्स ओके, एटलीस्ट डिस्कस विथ मी, एटलीस्ट यू आर लर्निंग द प्रोविजंस। ठीक है, आप लर्न कर रहे हो अगर नहीं भी पता होगा तो। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट वर्ड से ही हमको पता चल रहा है कि कौन से चैप्टर में से है, राइट? इट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, क्लास एक्शन सूट्स। इफ यू रिमेंबर, क्लास एक्शन सूट कैन बी फाइल्ड बाय मेंबर्स ओनली एंड द राइट इज नॉट अवेल टू डिपॉजिटर्स ऑफ द कंपनी। कितना इजी क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर में हमने एक ही चीज पढ़ा था जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताया भी था कि सिर्फ मेंबर्स, ये बनाया ही क्यों गया था क्लास एक्शन सूट, कि मेंबर्स भी क्या कर सकते हैं, कंपनी को सू कर सकते हैं, और साथ साथ में डिपॉजिटर्स के पास भी राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, कंपनी को सू कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी फ्रॉडरी और फ्रॉड डन बाय द कंपनी। Do you agree with this statement? Discuss the relevant provision under the Companies Act. क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्लास एक्शन सूट जो है वो सिर्फ मेंबर्स कर सकते हैं और डिपॉजिटर्स नहीं कर सकते। डू यू अग्री? तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो आपको लिखना है, दैट इज no, we do not agree with the statement provided in the question. In fact, the class action suit can be filed by members as well as depositors. The relevant provisions are as under, if you remember 445 में हमने पढ़ा था how company and depositors can go for class action suits। तो मैं आपको ये एक बार easy chart के फॉर्म में बता देती हूँ and then we can just डिस्कस दी आंसर जो लिखा है आंसर फॉर्म में। ओके, सो इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था मेंबर्स के केस में अंडर सेक्शन 245, राइट? तो हमने इसमें पढ़ा था कि इन केस अगर कंपनी इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ बट मेक श्योर इन एग्जाम नेवर यूज शॉर्ट फॉर्म्स। ओके, इन केस कंपनी इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो कितने मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं? 1/5 of the total number of members, 1/5 of the total members। okay, this is not less than, this is not less than। ठीक है, in case company is having share capital, now see, in case company is हैविंग, ये आपको लर्न कर लेना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, एक हाथ केस लॉ पूछ ही लेता है। अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है सो उसमें 2 केसेस है, या फिर 5% ऑफ टोटल मेंबर्स, ओके, 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और 100 मेंबर्स, विच एवर इज लेस। अब यहाँ पे समझो, अगर कंपनी के पास सपोज 100 मेंबर्स ही है, उसका 5% कितना हो गया? 5 मेंबर। तो 5 मेंबर या 100 मेंबर दोनों में से कम कौन से है? 5 मेंबर। तो 5 मेंबर अप्लाई कर सकते हैं फॉर क्लास एक्शन सूट। बात समझ आई? ऑल्सो मैं एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, अगर 200 मेंबर है कंपनी में तो 200 मेंबर का 5% कितना हो गया? 10 मेंबर। तो 10 मेंबर और 100 मेंबर दोनों में से जो लेस है, लेस क्या है? 10 मेंबर, तो 10 लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, दिस वाज कंपनी इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर मैं बात करूं अनलिस्टेड कंपनी की तो वो भी हमको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, इन केस इट इज एन अनलिस्टेड कंपनी। ओके, तो यहाँ पे हमको लिखना है नॉट मोर, सॉरी, this is again not less than 5%, बट यहाँ पे ऑफ टोटल मेंबर्स नहीं है, यहाँ पे नॉट 5% ऑफ टोटल इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब ऐसे मेंबर, सिंगल मेंबर भी कर सकता है, ठीक है, सिंगल मेंबर और मेंबर्स जिनके पास एटलीस्ट 5% ऑफ इशू कैपिटल तक का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है,
व्हेन आई टॉक अबाउट लिस्टेड कंपनी, बेटा प्लीज ध्यान से देखना ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है. ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट लिस्टेड कंपनी, इन लिस्टेड कंपनी इट इज 2% ऑफ द इशूड कैपिटल. डिपॉजिटर्स के पास जाने से पहले हम एक बार मेंबर्स का रिवाइज कर लेते हैं. कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है. सेक्शन 245 बोलता है कि अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं. इन केस कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो 5% ऑफ टोटल मेंबर्स या 100 विच एवर इज लेस, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है. अनलिस्टेड कंपनी है तो एक मेंबर भी कर सकता है या एक से ज्यादा भी कर सकते हैं जिनके पास नॉट लेस देन 5% ऑफ इशूड कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा. और अगर लिस्टेड कंपनी है तो 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. ठीक है, नॉट लेस देन, याद रखना. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डिपॉजिटर्स, व्हेन आई टॉक अबाउट डिपॉजिटर्स, तो डिपॉजिटर्स का क्या है, जस्ट 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स और 100 डिपॉजिटर. सेम जैसे मेंबर का था हैविंग शेयर कैपिटल वाला केस. दिस इज विच एवर इज लेस. बात समझ आई? कुछ नहीं है डिपॉजिटर में. 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स और 100 डिपॉजिटर, विच एवर इज लेस लिखना मत भूलना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके और इसमें एक और प्रोविजन है जो हमको पता होना चाहिए. इससे रिलेटेड भी केस लॉ पूछ सकता है कि डिपॉजिटर्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास टोटल 5%, मतलब कंपनी के पास जितना भी डिपॉजिट है उसका 5% शेयर आपके पास है मिनिमम, तो भी आप जाके क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो. मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ. इन केस ऑफ डिपॉजिटर्स 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स और 100 डिपॉजिटर विच एवर इज लेस. ठीक है, सेम मेंबर जैसा है. और अगर आपके पास 5% ऑफ शेयर टोटल डिपॉजिट का है, तो मतलब आपने कंपनी को जितना डिपॉजिट दिया हुआ है तो टोटल डिपॉजिट कंपनी का उसमें से 5% एटलीस्ट आपने दिया हुआ है. सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर class action suit. I hope this is pretty clear. Let's go through, just a second. Let's go to the answer guys. एक बार आप लोग आंसर रीड कर लो, बिकॉज आंसर फॉर्मेट, देखो आंसर क्या है वो आना इज वन थिंग, बट उसको लिखना कैसे है ना इज अनदर थिंग. तो लिखना कैसे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो मेक श्योर यू डू इट इन अ प्रॉपर वे. यहाँ पे देखो, क्लास एक्शन सूट्स बाय मेंबर अंडर 245 सबसेक्शन 3(1), उसमें क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 100 और 5% ऑफ टोटल नंबर, अभी जो हमने देखा. ठीक है, एंड इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल मोर देन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर, मतलब एटलीस्ट 1/5 होना चाहिए, उससे ज्यादा भी चलेगा. एंड इन केस ऑफ डिपॉजिटर्स हमने देखा कि 100 डिपॉजिटर्स और 5% ऑफ टोटल नंबर, विच एवर इज लेस. ओके, विच एवर इज लेस. क्लियर? क्लियर? यहाँ पे आपको पूरे लिमिट्स बताया है अलग से, बट आप उसको एक ही चार्ट में लिख सकते हो. ओके आप उसको एक ही चार्ट में लिख सकते हो. यहाँ डिपॉजिटर्स का बताया है कि 5% और 100 डिपॉजिटर्स और डिपॉजिटर्स जिसके पास 5% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट्स है, टोटल डिपॉजिट्स है. ओके, प्रिटी क्लियर, वेरी वेरी इजी, बहुत इजी है ये, कुछ भी नहीं है. अभी हमने 8 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस किए और दोनों डायरेक्ट क्वेश्चंस थे. हमको ऐसा लगता है कि वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे, बट वो बिल्कुल भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था. ओके ग्रेट. Coming to the next question, that is, a company engaged in the real estate business intended to come out with initial public offer, filed a prospectus with the SEBI for its approval. In prospectus, the company mentioned that it is having a land bank in Mumbai. Land bank मैं आपको बता दूँ, land bank का मतलब होता है बेटा कोई जगह जहाँ कंपनी अपना कुछ प्रॉपर्टी क्रिएट करने वाली है, रियल स्टेट का कुछ क्रिएट करने वाली है, दैट इज नोन एज लैंड बैंक. ओके, कोई जगह जहाँ पे कंपनी कॉर्पोरेट पर्पस के लिए या किसी भी पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाली है, बनाने वाली है, कंस्ट्रक्ट करने वाली है. ओके सो कंपनी है जो आईपीओ निकाल रही है, जिसने सेबी से अप्रूवल लिया है, और उसने प्रोस्पेक्टस में ऑब्जेक्ट क्या डाला है, आपको बताना पड़ता है कि आप क्यों ये लैंड
इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों आईपीओ निकाल रहे हो। सो उस कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि हम ये आईपीओ इसलिए निकाल रहे हैं मुझे क्योंकि वो लैंड में हमको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना है फॉर रेसिडेंशियल फ्लैट। ओके, सो जिसने भी यहाँ पे बात समझो, जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा वो ये सोच के करेगा कि ये पैसा कहाँ जाने वाला है, ये रेसिडेंशियल फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन में जाने वाला है। ओके, डेफिनेटली आप कंपनी जो बिजनेस के लिए आईपीओ कर रही है वो बिजनेस देखकर इन्वेस्ट करते हो कि इसमें ग्रोथ रहेगा कि नहीं रहेगा, राइट। तो जिनने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था यही सोच के किया था कि यहाँ पे ग्रोथ रहेगा कि नहीं रहेगा, और उसको कहाँ इंटरेस्ट था, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट्स, इसीलिए उसने इन्वेस्ट किया था। तो आगे देखो, कंपनी के पास लैंड बैंक है मुंबई एंड पुणे में, एंड प्रोसीड्स ऑफ द आईपीओ शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट्स, और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट्स के लिए ये यूज किया जाएगा। अशोक इन्वेस्टेड इन द आईपीओ, अब अशोक एक पर्सन है जिसने आईपीओ में इन्वेस्ट किया, एंड ऑल्सो गॉट द अलॉटमेंट लेटर। लेटर ऑन it was discovered that company was not having a land bank either at मुंबई और पुणे, मतलब कंपनी ने लोगों से पैसे तो ले लिए, बाद में पता चला कंपनी का तो कोई लैंड बैंक ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है मुंबई और पुणे में। At the time of the issue of prospectus, it had only entered into an agreement with the owner of the land for its redevelopment and thereafter construction of residential flat on lease basis. अब यहाँ पे इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के टाइम पे उन्हें एग्रीमेंट किया था ओनर के साथ, लेकिन कुछ डिस्प्यूट्स की वजह से जो लैंड ओनर है उसने रिफ्यूज कर दिया लैंड देने से। लेकिन अब इन लोगों ने आईपीओ इन्वेस्ट कर दिया है, इन लोगों ने लोगों से पैसे ले लिया है, अपना ऑब्जेक्ट बता दिया है, तो अब क्या, व्हाट रिकोर्स इज अवेलेबल टू अशोक हु हैज इन्वेस्टेड इन आईपीओ। अब अशोक के पास क्या ऑप्शन बचता है, कैन यू कनेक्ट, ये कौन से चैप्टर में से है आरसीडी के, कैन यू कनेक्ट, इफ यू रिमेंबर ये 3rd चैप्टर में से ही है, क्लास एक्शन सूट्स, कि अगर कंपनी कोई आईपीओ निकालती है, ठीक है, और कंपनी किसी भी मेंबर को जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको फ्रॉड कर रही है, मींस यहाँ पे अशोक को बोला गया था कि हम आपके पैसे कहाँ यूज करेंगे, रेसिडेंशियल फ्लैट्स के कंस्ट्रक्शन में, लेकिन बाद में अशोक को पता चला ना मुंबई पुणे में कोई लैंड बैंक है, ना ही वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि कंपनी में डिस्प्यूट है, कंपनी का क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज उसने इन्वेस्ट किया, उसके पैसे कहाँ जा रहे। सिचुएशन समझ में आई, सो इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि there is penal provisions available for misstatements in prospectus, civil liability भी है, criminal liability भी है, punishment भी है। if you remember section हमने 34, 35, 36, 37 लाइन से पढ़ा था, मैं आपको दिखा देती हूँ। चैप्टर नंबर 3 में हमने ये देखा था, action by affected person। okay, a suit can be filed by any other action, or any other action may be taken by person, group of persons or any association by misleading statement or including omission in any matter in the prospectus। अगर आप prospectus में कोई भी misstatement डालते हो as a company to the members, तो members क्या कर सकते हैं, members आवाज उठा सकते हैं, they can go for filing a suit, they can take any other action। okay, so let's go with how to present the answers, हम उसमें देख लेते हैं। Section 37 of the Companies Act provides that the suit may be filed or any other action may be taken under 34, 35 and 36। तीनों में बता रहा है, 34 for criminal liability for misstatement, 35 for civil liability for misstatement and 36 for punishment for fraudulently inducing persons to investment। ओके अब यहाँ पे इसमें बोल रहा है कि 34 सेक्शन बोलता है कि कंपनी प्रोवाइड्स अ क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन वेयर अ प्रोस्पेक्टस इशूड, सर्कुलेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर चैप्टर 3 इंक्लूड्स एनी स्टेटमेंट विच इज अनट्रू। और यहाँ पे वही हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उनने जो प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट डाला वो क्या था, अनट्रू था। तो यहाँ पे उनको कौन से सेक्शन के अंडर लेकर जाया जाएगा, फ्रॉड इज व्हाट, सेक्शन 447। इसमें भी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है। ओके और सेक्शन 35 क्या बोलता है कि अगर provides civil liability for misstatement according to this section where a person has subscribed of securities of a company acting on any statement included or inclusion or omission of any matter in the prospectus which is misleading and sustained any loss, then the company and every person who is a director of the company at the time of issue of prospectus has authorized himself to be named and name in the prospectus of director। उसको क्या लगेगा,
उसको डेफिनेटली पेनल प्रोविजंस लगेंगे। क्लियर है? क्लियर है, ये हमने देखा था इफ यू रिमेम्बर। यस, क्लियर? अगेन इनडायरेक्ट क्वेश्चन इन द डायरेक्ट फॉर्म, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फॉर 4 मार्क्स ईच। अगर आप कनेक्ट कर पाओ तो ये बहुत इजी था, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था। ठीक है, अभी तक हम लोग चैप्टर 3 ही चैप्टर में खेल रहे हैं। अगर आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया था गाइस, वो भी बहुत इजी था, और वो भी इट वाज फॉर 20 मार्क्स, एंड फर्स्ट सेकेंड चैप्टर से ही थे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट 3 चैप्टर से हमने ऑलमोस्ट 30 to 40 मार्क्स का सॉल्व कर लिया, विच इज द इजीएस्ट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। ओके, नाउ यहाँ पे इंडियन पेनल कोड आपको पढ़ के ही पता चल गया होगा कि चैप्टर नंबर 4 में से पूछ रहा है। ठीक है, रेगुलेटरी एक्शंस हमने एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें आईपीसी के अंडर और बहुत सारे प्रोविजंस के अंदर हमने देखा था। सी द क्वेश्चन फर्स्ट। एज पर द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी 1860, the offences relating to cheating, intention to deceive is to be proved, and mere negligence is not a cheating. एकदम इंटरेस्टिंग और इजी सा क्वेश्चन है, खुश हो जाना चाहिए आपको ये क्वेश्चन पढ़ के, बिकॉज 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको केस लॉ डिस्क्राइब करना है, जिसमें हमने अभी 6 से 7 केस लॉ इसमें डिस्कस किए हैं। मैंने आपको क्लास में अलग आंसर फॉर्मेट में लिख के बताया है। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट बताना है कि व्हाट डज द जज सेज एंड व्हाट इज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ चीटिंग। तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ चीटिंग जो है, इफ़ यू रिमेंबर, हमने अलग से पढ़ा है, इंटरेस्टिंग है। चीटिंग में हमने यही पढ़ा था कि सामने वाले का इंटेंशन होना चाहिए और इट शुड बी प्रूव्ड। ऐसा नहीं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बैंक है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी पर्सन जो जॉब करता है, कोई एम्प्लॉई है वहाँ पे, ठीक है, उसने कोई चेक इशू किया और गलती से उसने गलत साइन से पास कर दिया, तो ये नेग्लिजेंस हुआ, मतलब ये नजरअंदाजी हुई, ये इसको आप चीटिंग नहीं बोल सकते। चीटिंग करने के लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो एम्प्लॉय था, इसका इंटेंशन था, इसने जानबूझ के साइन को ऐसे ही पास किया, इसने जानबूझ के विदाउट साइन चेक पास किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यही चीज हमने चीटिंग में देखी थी, इफ यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 4, सेक्शन 415 to 420। ओके, जो पोजेशन क्वेश्चन में, जो प्रॉपर्टी क्वेश्चन में है, या जो भी आपने चीटिंग करके प्रॉपर्टी ली है, या कोई भी चीज आपने की है, किसी को कोई इन्वेस्ट करने बोला है, सो इट शुड बी द इंटेंशन ऑफ डिसीविंग, धोखा देने के इरादे से, फ्रॉड करने के इरादे से, जानबूझ के किसी को आपने फोर्स करके कोई इन्वेस्टमेंट करवाया है, दैट इज चीटिंग। लेकिन मर नेग्लिजेंस, मतलब सिर्फ आप इस बेसिस पे नहीं बोल सकते हो कि सामने वाले ने कोई जानबूझ के गलती से कोई चीज कर दी, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जानबूझ के एंड गलती से करना। तो मर नेग्लिजेंस इज नॉट अ चीटिंग। इसको हमने क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़े थे, हमने 1 घंटा सिर्फ इसी के बारे में डिस्कस किए थे। ओके, और यहाँ पे हमने देखे थे व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट्स इन चीटिंग। सो डेफिनेटली डिसेप्शन ऑफ एनी पर्सन, मतलब किसी को भी धोखा देना, जानबूझ के इंटेंशनली धोखा देना। ठीक है, इंटेंशनली इंक्लूडिंग द पर्सन टू डू, मतलब आप किसी को फोर्स कर रहे हो, उसको बहला फुसला के, एकदम फोर्स करके, कन्विंस करके कहीं इन्वेस्ट करने बोल रहे हो। ओके, चलो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन चीटिंग एंड टीचिंग। ओके, सो डोंट टेक दैट वर्ड सीरियसली। अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज द आंसर, लास्ट वाला, दिस इज द वे यू प्रेजेंट द आंसर। ओके, और इससे भी ज़्यादा अच्छे वे में मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि किस तरीके से हमको आंसर प्रेजेंट करने हैं। ओके, जब आप यहाँ केस लॉ लिखोगे तो यहाँ मेंशन करो केस लॉ। ओके, व्हेन यू राइट द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जज, यहाँ लिखो जज प्रोनाउंसमेंट। ओके, दिस इज द वे यू कैन अट्रैक्ट द एग्जामिनर, और ये काम करता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार प्रोफेशनल एग्जाम है, क्या फ़ायदा है, आंसर सही लिखो, मार्क्स मिलेंगे, प्रेजेंटेशन डजंट मैटर, बट प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। ओके, चलो आगे एक बार हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Section 415 to 420 of IPC deals with offense in cheating. So what does this says is कि however, by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person or consent that any person shall retain any property, or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he could not do
और omit if it was not so deceived। इसका मतलब अगर आप किसी को कन्विंस करके किसी से प्रॉपर्टी डिलीवर करवा रहे हो, कुछ परचेज करवा रहे हो, इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो, अगर वो नहीं करता, अगर आप कन्विंस नहीं करते तो सो दिस इज चीटिंग। ठीक है। और व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स, अभी हमने देखा डिसेप्शन, धोखा देना, फ्रॉड करना, डिसऑनेस्टली, जानबूझ के उसको कहीं चीज में फंसाना, इंटेंशनली करना, दैट इज चीटिंग। लेकिन कोर्ट का प्रोनाउंसमेंट क्या था, मर नेग्लिजेंस इज नॉट चीटिंग। जैसे एक केस मैं आपको बता देती हूँ, टी आर आर्या वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जैसे अभी मैंने आपको बताया, अ बैंक एम्प्लॉय व्हेन ऑन कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर ऑफ ड्रॉर पासेस अ चेक देयर में बी नेग्लिजेंस, वो नजरअंदाजी हो सकती है बट वो रिजल्टिंग इन लॉस टू बैंक बट कैन नॉट बी हेल्ड एज चीटिंग। चीटिंग के लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि दिस इज मोर इंटेंशन या जानबूझ के आपने किया है। ठीक है। सिर्फ नेग्लिजेंस, सिर्फ नजरअंदाजी ये नहीं बोल सकते कि सामने वाले ने चीटिंग किया, अदरवाइज देयर वुड बी लॉट ऑफ केसेस ऑन चीटिंग। इसीलिए ये मेन इंग्रेडिएंट्स डाले गए। ओके, सो आई होप गाइज आपको ये हेल्प किया होगा। हमने ऑलमोस्ट 30 to 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं एंड दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to 4। अभी तक हम 5-6 चैप्टर में गए भी नहीं है। So just understand there are 9 chapters in ICD, RCD and पूरे 9 chapters बहुत important है और बहुत interesting है। आपको पढ़ते टाइम पता भी नहीं चलेगा टाइम कब गया। Okay, so just make sure that you are studying everything logically, not only in RCD but कोई भी subject हो, चाहे executive का हो, professional का हो, CSET का हो, unless and until you are not studying logically, आपको वो बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बट एक बार अगर आप कोई चीज़ लॉजिकली लर्न कर लोगे तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, इवन रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड पास्ट एग्जाम्स क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपको एग्जैक्ट सिनेरियो देता है कि पढ़ना कैसे है, आता कैसे है एग्जाम में क्वेश्चन। ट्रस्ट मी, इतने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये भी नहीं पता कि पेपर पैटर्न क्या है। सो डोंट डू दैट, स्टडी इंडेक्स, पेपर पैटर्न देखो वेबसाइट्स में जाके। Okay, so we are going to come with another video for question number 3 of RCD. Okay, great. Thank you so much guys. And yes, one important thing again, let me remind you, if you have not joined the Telegram channel, join the Telegram channel. Okay, take the subscription. You can use my code for maximum discount and definitely like, subscribe the channel for getting regular updates and notifications. Thank you so much.